North India shivers at 5 degrees. Srinagar has dipped into negative. That is how cold the temperature is. But we're talking about the political temperature in Delhi, and that is soaring. The Janata Parivar's massive show of strength in the heart of Delhi is our top focus story. The top guns of the anti-Narendra Modi government alliance, they are on stage. Lalu Prasad Yadav, Mulayam Singh Yadav, H.D. Deve Gowda are all at the venue. Azam Khan fired the initial salvo with a rabble-rousing speech, and these are pictures from Jantar Mantar. This is a massive protest against the Narendra Modi government. The opposition taking on the government for its alleged failures to deliver on its election promises, whether it's bringing back black money or raking up the issue of conversions of love jihad. Headlines today is Kamaljeet Kaur Sandhu now joins me with the latest. Kamal, Azam Khan fired the first salvo. Take us through the latest at Jantar Mantar. Well, right now it's Nitish Kumar, the former Chief Minister of Bihar, who is speaking. Earlier it was Deve Gowda, and before that we've seen Azam Khan really training his guns on Narendra Modi, and no kind words for him. They said that if it's a matter of communal conversion, why doesn't BJP, or for that matter RSS, start from Mukhtar Abbas Naqvi or Shahnawaz Hussain, saying a lot of people who trusted Mahatma Gandhi stayed back, but now there is this communal tension which is being palpitating in the state of Uttar Pradesh, or also in the country. So obviously there is this tension which has been brewing, but this is a massive show of strength right here in the valley, in this entire place of Parliament Street. This is obviously right here in the capital, with 5 parties coming together to make sure that they still remain politically relevant. We know that the UP Assembly elections in 2017, but on ground we also know the fact remains that if BJP got 282, these parties put together only got 12 seats. So this is the time they need to tell the people that they still are politically relevant, that the issues taken by BJP or the promises made either on black money or the issue of communal conversion, for that matter inflation. Stay with me for a moment. Let's quickly listen in to former Bihar Chief Minister and JDU leader Nitish Kumar. इस विशाल धरना में, महाधरना में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, और सब कड़ी ठंड को झेलते हुए जिस तरह से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और आप सब जानते हैं कि जनता परिवार से जुड़े विभिन्न दलों के द्वारा यह संयुक्त रूप से आयोजित है। हम आपस में मिलते रहे हैं और कई मुलाकातों के बाद, कई मुलाकातों के अलावे 2 औपचारिक बैठकें हुई। आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के बुलावे पर, और पिछली बैठक में जो 4 दिसंबर को हुई, उसी में इस बात का निर्णय लिया गया कि हम एकजुट होंगे, मिलकर चलेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम अपने अपने अलग पार्टियों के वर्तमान स्वरूप को एक दल में विलीन करें, लेकिन यह सब आगे की प्रक्रिया होगी। इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए संयुक्त कार्यक्रम से, और इसी दृष्टिकोण से आज के दिन इस महाधरना का आयोजन हुआ। और केंद्र में जो सरकार बनी है, 7 महीने बीत गए। जो इन्होंने चुनाव के दौरान वायदे किए थे, वो सबको भूल गए हैं। इन्होंने चुनाव के दौरान
युवा पीढ़ी के लोगों से वादा किया था कि हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। युवा पीढ़ी के लोगों ने उत्साह में आकर उन्हें वोट दिया, सरकार बन गई। लोगों को भरोसा था कि उनके रोजगार का प्रबंध होगा, लेकिन नए रोजगार के प्रबंध की बात छोड़ दीजिए। जो रोजगार पहले से उपलब्ध थे केंद्र सरकार के पास, उनके नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। आज सबसे ज्यादा अगर कोई ठगा हुआ महसूस कर रहा है तो वह है देश की युवा पीढ़ी। किसानों की बहुत बड़ी आबादी है देश में। हमारे यहां बिहार में तो 76% लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। वादा किया गया था कि किसानों के साथ न्याय करेंगे और किसानों को जो फसल उपजाने में लागत लगती है उस पर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा। ये बात और किसी ने नहीं, भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में तो था ही, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और जो आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने चुनाव सभाओं में ये बात हर जगह कही, लागत का 1.5 गुना मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा। आज क्या हुआ उस ऐलान का? अब जो केंद्र सरकार बनने के बाद इन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की, लागत के 1.5 गुने की बात भूल जाइए। जो पहले के वर्षों में भी जितनी वृद्धि होती थी उतनी वृद्धि नहीं हुई। किसानों के आत्महत्या का सिलसिला बंद नहीं हो रहा, और तो और गुजरात में किसान परिवार के 21 साल के नौजवान ने आत्महत्या का दाह कर लिया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा? हर प्रकार के किसानों को, चाहे वो गेहूं पैदा करें, धान पैदा करें, मक्का पैदा करें, कपास पैदा करें, सबकी हालत बिगड़ती चली जा रही है। तो हम सब जानना चाहते हैं क्या हुआ वायदों का। मांग कर रहे हैं गुजरात में लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात। आज अपने किए गए वायदे को भूल गए। इन्होंने देश भर में कहा था काला धन वापस लाएंगे, और इतना काला धन विदेशों में जमा है, इस देश के चोर लुटेरों ने देश का धन लूटकर जमा किया है कि अगर हम वो पैसा ला पाएंगे और लाएंगे तो देश के हर गरीब आदमी को मुफ्त में यूं ही 15 से 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये कहा था आदरणीय मोदी जी ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के हैं श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने तो कहा कि 100 दिन के अंदर वापिस आ जाएंगे। न जाने क्या क्या कहे गए। आप सब इतनी संख्या में, ठंड भी हमारे नेताओं को बोलना है, वरना मैं तो अपने हर कार्यक्रम में आज वो उनका ऑडियो कैसेट सुनाता हूं। ये कोई हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये उन्होंने कहा चुनाव में, साफ तौर पर कहा चुनाव में। अगर आप कहें तो उसको हम सुनावे जो चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था। देखो, मोदी जी की सरकार आने पर बाबा रामदेव है, आजकल कहां गायब है पता ही नहीं चल रहा। सैकड़ों नहीं लाखों करोड़ रुपए देश को वापस दिलाने का काम शुरू करवाए। और बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि केंद्र में उनकी सरकार बनने के बाद 100 दिन के अंदर अंदर विदेशों में जमा कालाधन वापस लें। कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आवाज पहचान रहे हैं या नहीं आप लोग? आवाज पहचान रहे हैं, सुनिए ध्यान चाहिए।
ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। चुनाव में क्या उन्होंने कहा कि हर गरीब को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपए मिल जाएंगे? कहां गया रुपया? ये भारतीय जनता पार्टी के हर नेता के सामने जाकर पूछना चाहिए कि ये कहां गया 15 से 20 लाख रुपया? कब दीजिएगा? चेक से दीजिएगा कि नगद दीजिएगा, कैश दीजिएगा? ये एक एक से पूछना चाहिए। आप लौट करके जाइए और हर जगह लोगों से पूछिए। और इसके बाद बताइए, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना चली है, हालांकि ये पुरानी स्कीम है, नाम नया, प्रचार में माहिर लोग हैं। इसमें खाता खुल रहा 8 करोड़ से ज्यादा खुल गया, लेकिन अभी समाचार पत्रों में खबर आई है, छपी है कि भाई 5 करोड़ से ज्यादा खाताधारी हैं, उनके अकाउंट में कोई लेन देन नहीं हुआ है। और ये जनधन योजना का जो लाभ था कि जिसका खाता होगा उसको दुर्घटना बीमा योजना का भी लाभ होगा, लेकिन खबर छपी है कि जिन खाताधारियों के खाते से कोई लेन देन नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, अब उनको दुर्घटना बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। बताइए, अरे भाई 15-20 लाख रुपया लाने में देर लगता तो देर होती कोई बात नहीं है आदरणीय मोदी जी, कम से कम बोहनी तो कर देते, शुरुआत तो कर देते, उन गरीबों के खाते में 10-15 हजार रुपया ही जमा कर देते तो कम से कम उन गरीबों को दुर्घटना बीमा योजना का लाभ तो मिल जाता। चुनाव के टाइम में 15-20 लाख देने की बात, और अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हाल में मन की बात जो ये करते हैं रेडियो पर, उसमें क्या कहा है ये भी सुन लीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछली बार जो मैंने बातें की थी, उन बातों के बाद एक नया एहसास हुआ है। जहां तक काले धन का सवाल है, ब्लैक मनी का सवाल है, मेरे देशवासी, भारत के गरीब का पैसा जो बाहर गया है वो पाई पाई वापस आनी चाहिए। लेकिन मेरे देशवासी, मुझे जितनी समझ है और मेरे पास जितनी जानकारी है, आज तो किसी को पता नहीं है, न मुझे पता है, न सरकार को पता है, न आपको पता है, न पहले वाली सरकार को भी पता था कि कितना धन बाहर है। अब आप समझ लीजिए, हर कोई अपने अपने तरीके से अलग अलग आंकड़े बताते रहते हैं। 2 रुपया है, 5 रुपया है, करोड़ है, अरब है कि खरब है, जो भी है। अब सोच लीजिए, चुनाव के टाइम में इनको पता था कि इतना पैसा है कि हर गरीब को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे, और अब कह रहे हैं कि पता ही नहीं है, न हमको पता, न आपको पता, न मेरी सरकार को पता, न पिछली सरकार को पता। अगर पता ही नहीं था तो चुनाव में कहा क्यों? यानी चुनाव में झूठे वायदे करके वोट लेना, और अब सरकार में आ गए, सपना दिखाया लोगों को, और अब लोगों को धोखा मिल रहा है। ये बोलते हैं विकास की बात, और इनके सारे संगठन नीचे में समाज को लड़ाने की बात कर रहे हैं। और अब तो साफ साफ तौर पर, अब तो राज्यसभा में लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री जी आइए 2 शब्द कह दीजिए। कोई कह रहा है कि बीजेपी को नहीं मानने वाले हरामजादे हैं, कोई कह रहा है गोडसे राष्ट्रभक्त थे, उनकी मूर्ति लगाएंगे, कोई कुछ कह रहा है इस देश में।
कोई कह रहा घर वापसी करेंगे और घर वापसी के लिए पर्चा छपता है और कहा जाता है कि एक की वापसी में जो एक धर्म से आएगा उसमें 5 लाख, दूसरे धर्म से आएगा उसमें 2 लाख। ये क्या हो रहा है? धर्म बदलने के लिए घर वापसी के नाम पर रुपए खर्च किए जा रहे हैं, प्रलोभन दिए जा रहे हैं, समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। जो इस देश के मूल मुद्दे हैं उनका समाधान करने में ये सक्षम नहीं है, इसलिए लोगों का ध्यान बांटने के लिए समाज को बांटना चाह रहे हैं। इसलिए आज ये महाधरना का कार्यक्रम है। वादा निभाओ, जो वादा किया उसे निभाना पड़ेगा और नहीं तो जाना पड़ेगा, इससे अलग कोई बात नहीं। जनता ने दे दिया वोट, लोग अफसोस करेंगे और कर रहे हैं। इसलिए आज संकल्प लेने का वक्त है। सब लोगों को बोलना है। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जिस तरह से 2 बैठकों में बैठकर हम लोगों ने तय किया, जनता परिवार के शामिल दल मिलकर एक दल बनाएं और भी बाकी लोग हैं उनके साथ हम और भी आगे व्यापक गठजोड़ बनाएं और इस देश की जनता को मजबूत विपक्ष दें और मजबूत विकल्प प्रदान करें। फिर जनता झांसे में नहीं आएगी। यही निवेदन है और आज यही संकल्प है। अगर ऐसा होता है तो इस देश की जनता को रास्ता मिलेगा। After 2 rounds of meetings at Mulayam Singh Yadav's house, this is the anti-Modi, anti-Narendra Modi bloc that's taking shape at Jantar Mantar. The former Bihar Chief Minister and JDU leader Nitish Kumar was just speaking, where he spoke of promises made by Narendra Modi during election rallies not being fulfilled, whether these were promises that were made to youth about giving them more jobs, to farmers about getting them the minimum support price for their produce, also on the issue of black money. Kamaljeet Kaur Sandhu now joins me with more on this. Kamal, tremendous response if you look at the number of people who are there. Audio tapes of Narendra Modi's rallies played out here. Tell us more about what's happening and what's the strategy from this point on. Well, this is a political ambush, and remember, these parties have come together to be politically relevant. Remember, it is Narendra Modi government which has got 282 seats, and all these 5 parties put together have only 12 seats. They need to be politically relevant. They need to get and show the people that they still have socially relevant issues, and they will make for a counter opposition parties, and that is how they're not only raising concern within the parliament but outside it. This one is a show of strength of sorts, and remember, they've been demanding answers from within the parliament from Narendra Modi, at least on conversion issues. Outside it, there are many more issues, including the farmers' concerns, black money issue of love jihad. So these are issues which are being raised. This is coming in the first 6 months of Narendra Modi government. So this is a political ambush, but all these political parties is coming together, leaving the past behind. Remember, it's friends turn foes, turn friends again. So they have come to a platform. They are doing the rally within the capital to make sure that Narendra Modi gets the message that they are coming together to counter him. Okay, now is Sharad Yadav appears to be speaking at this point of time. Is that what? Who all are the speakers? Is this then the road ahead for these parties? Take on Narendra Modi, especially on the issue of religious conversions. Is there where they get maximum traction, Kamal? Well, definitely. So we know JDU, JDS, INLD, Samajwadi Party. So all these people, all the representatives, including Mulayam Singh Yadav, will be making that speech. The message is right clear that we've come together and we've come with proof
they're going to really hit at Narendra Modi government. They're also raising questions not just related to black money. They're also raising issues within the parliament, talking about how Nathuram Godse was praised by Narendra Modi's men. Also issue about how Ramzadeh and Ramzadeh became such an issue. We tried to speak to Azam Khan as he made his way to the stage, but he obviously didn't want to speak on a controversial issue. But on the stage, once he was speaking, he also spoke about how these controversial conversions were taking place. So all these people are going to come together, show the people that they're still politically, socially relevant, and they still have a lot of energy in them to be a counter-opposition force. Okay, so you are saying that this is how they're trying to stay politically relevant, but what's the kind of traction that these leaders are able to muster? Because from parliament, several leaders, we are told, are now coming to be a part of this rally. Is the left also a part of this? Well, definitely so. The party, if you can find for you will see a sea of red caps out here. These are the people who Samajwadi Party have really got. But remember, from the neighboring state of Haryana, there are few members of INLD. The rest of the political parties are obviously from Bihar, from Karnataka, JDU, JDS. We're talking about RJD. These are the people who've been actually gathered here trying to listen to the speech. This is obviously, as I mentioned to you, show strength. They're trying to inculcate a sort of passion within themselves so that it gets transformed. This is the show strength to Narendra Modi that this is the first 6 months of promise that was made. They've not fulfilled it. And you can actually hear Sharad Yadav talking about that Ramzadeh versus Haramzadeh issue. So this is the thing that they want to really counter Narendra Modi with. The promises that they made, how they're using diversity tactics. And you can Kamal, for the moment, many thanks for joining me.